So, welcome, Kostu. So, you can tell me the specific question that you have pertaining to today's discussion, right? So that we can start talking. I can start talking actually. So, today's topic you have read my emails, right? It was something related to growth, if I'm not wrong. Leadership growth is the topic, but leadership growth has several subtopics also, you know. Suppose somebody is affected by anger issues. Somebody else will be sad for some reason, you know, and somebody else will be procrastinating for some reason. So reasons are different. That is why it becomes different for different people. So what exactly is your problem right now? Uh, so the common problem is that I'm also looking for good opportunities for job and growth. So this is a major, but current looking after the market situations, Mm. it's also very difficult to get a position and a good uh, opportunity. Yeah. So this is the only currently what I'm facing. So Mm. hope it will be getting resolved. Yeah. So, Kostus, there are few things that I want to share with you. Few questions, right? Yeah, So sure. questions are you need to answer those, otherwise it will not be resolved. See, most of the time, what happens is we actually don't assess ourselves properly. You know, you might be thinking that I can't do this, I can't do that. If that person asks me to do this, if suppose my responsibility goes like this, then I don't have that experience, I don't have that qualification. If you think like this, no, then actually in the interview you will keep on focusing on those issues. Are you getting me? So Mhm. what happens is the interviewer also needs to be manipulated, like what you do, what you are strong at, you know. So but what happens is so many times you are seeing, no, in your description also you told ki the market is such that you will not get the opportunities that you are looking, you think that you are not up to that, right? So whatever you are saying, it also says the other thing, opposite thing. So what is happening here is that instead of focusing on your strength, you are focusing on your weaknesses, and that actually frustrates you. So who is frustrating you? It is your own description of yourself. Are you getting me? Yeah, yeah. So when you frustrate yourself, you are also saying yourself to be not adequate. Then who is going to see you as the proper person? Nobody, right? True, true. So that is the first thing that happens when we search for another opportunity. Now, let me also tell you something else. Because you were thinking that you will get another opportunity where you will be very happy and all, you are not paying attention to your present opportunity where you are, because you are still in the job, right? So what is good there also you are not looking at, right? Right, okay, agreed. Mhm. Yes. So it is very hard to see the good in wherever we are, but if you start looking, no, that is what I handle the mind that is focused on the problem side and not focused on the solution side. You are not looking at the brighter side. So obviously your mind is looking at the darker side. And nobody in this world is perfect 100%. Right, If you are not, then I am also not. right, right. So does that mean that we are not adequate? We are not capable? No, right? But Right. it is you only has to see what is good in you.
So the Right. first thing that I deal with is how to look at the brighter side of yourself. First, so you actually in the entire problem that is happening in the job market is people do not look at themselves as capable people. So if you are not capable, you do not assess yourself to be capable, nobody else is going to assess you as capable, right? Right. So how to do that? How to look at your strength is the first thing. The second thing is I'll tell a bit of myself. Like say I also come with that usual kind of mix. Something something is strong in me, something is bad with me, right? Right. So mm, what happens was I also created certain kind. I was also not able to see what is good right now. For 12 long years, I did that, you know. And then suddenly, what happened? Something happened as a result of that. Actually, I changed a job because, like Right. you, I was also thinking that somewhere else it will be better, right? So whatever Right. is good right now, that will be good at some other place, but there will be something else bad, which is good here. So it Yeah, yeah. always is a balanced place. No place is going to be 100% pura badhiya, right? Yeah, So, this is the huh. So what happens when that happens? Something like that happened in my life also. Now, uh, but this time what happened? The responsibility that came to me was so huge that every day I had to look for solutions rather than thinking कि यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है. Are you getting me? I could go like say extricate myself from that. It happened automatically, of course, but I knew how it happens. So it so happened. Suppose whatever responsibility you are handling right yeah. now, Yeah. suppose whatever responsibility you are having, this also takes you say 9 p.m. in the evening, and might be it will go to another because you are listening to me. It might go up to 11 p.m. for you today. Right? Exactly. Exactly. So now you think, you accept that 11 p.m. भी अगर होगा, then also you can handle. Have you ever thought whatever responsibilities you have been given, this can be done in 3 hours? You wouldn't have thought like that because that thought खाली सोचने से नहीं होता है. It entails a lot other things also. कैसे manage करना है, whatever responsibility it hasn't occurred to you as yet, Yeah. right? There's the second thing. And on the top of it, suppose another responsibility comes to you somehow. Suppose one of your colleague leaves and that person's responsibility also is given to you. What now? Your responsibility doubles. Then people also expect कि आप कर लोगे. तो then what you will do? पूरे रात भर बैठोगे, सुबह यहाँ ऑफिस में ही रह जाओगे फिर तो, राइट? क्योंकि घर जाने में टाइम लगता है. So you, in order to save time, you will make an arrangement to stay in the office. और अपना एक बेडिंग ले आओगे यहाँ पे, and then घर ऑफिस के पास you will arrange for your food. That actually happens with people. That is what I have seen. मजाक नहीं कर रही हूँ मैं. I'm telling you the truth. Now, how can you stop that from happening? कभी ना कभी तो होगा. क्यों होगा? Because once you are given the responsibility, लोगों ने देखा है कि आप कर लेते हो. So office में the person who is very honest to his or her responsibility is given more responsibility, right? Right. Right. अच्छा है कि बुरा है?
अच्छा है कि बुरा है? इसका 50-50 मैं बोलूंगा, क्योंकि अपना पर्सनल लाइफ भी हैम्पर हो जाता है। मैं तो नहीं बोल रही हूँ ना अच्छा है, मैं नहीं बोल रही हूँ बुरा है। मैं आपका मैं इसलिए बोला ना कि मैं इसमें 50-50 बोलूंगा, क्योंकि नो, इट इज बैड यार। देखा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना भी अच्छा है, तो उसमें क्या होता है ना कि काम दिखाने का जगह नो मिलता है, नो 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 नो, काम दिखाने का जगह। तो फिर आपका ऑफिस 24 आवर्स होना चाहिए। कौन सा हाँ, एचआर पॉलिसी में लिखा है कि द एम्प्लॉय हैज टू वर्क फॉर 24 आवर्स? नो अगर वर्ड। if that is what is logical. See, हम क्या करते हैं, we also embrace lot of illogicality, irrationality into our behavior. दिस इज हाँ, when we take that, अब उस दूसरे बंदे को हम नहीं रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं ना कि the other person is responsible. अब वो अच्छे से बात कर लिया तो then you think कि भाई या मेरी तो रिकॉग्निशन हो ही रही है, राइट? और बुरे से बात कर लिया तो फिर आप बोलोगे कि दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढे, राइट? एंड द इंडस्ट्री डेटा सेज कि व्हेन ए पर्सन इज इनटू कंप्लेंट जोन, देन व्हाट हैपेंस कि he is acting at 20% productivity level, or the more senior you get, the more delayed it will be to get another opportunity. ट्रू। And suppose, and for say people who have say 6 to 7 years of experience, उनको 3 से 4 साल लग जाते हैं to get the next opportunity, right? राइट राइट। For all that time they will be acting at 20% productivity level. Industry data बोलती है, this is not my data, right? राइट। And when that happens, what happens to your potential? आप बताओ। आप तो you are तो born with some potential ना, each of us is born with some potential. एवरीवन हैज अभी सम। हाँ, सो व्हाट हैपेंस टू योर पोटेंशियल? अभी आप रात के 9 बजे तक बात बैठे हो यहाँ पे काम करने के लिए, एंड इफ यू आर मैरिड, यू थिंक दैट योर वाइफ इज गोइंग टू कुक यू फूड, और आप खा पी के सो जाओगे क्योंकि एनर्जी बची नहीं होगी। इफ यू हैव किड्स, देन वो उनके लिए तो बड़ा गया गुजरा टाइम है। देन यू कम बैक एंड you do all this, but when you are going for interview in another organization, and that organization में आप बोलोगे, वो पूछेगी, लाइक पूछेगा या फिर पूछेगी, why do you want to leave that organization, what is bad about your existing organization? ठीक है? तो whatever you say ना, उससे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम, आपके बारे में ज्यादा जानेगी। दिस इज ट्रू। हाँ, एंड देन दैट इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई, आई टेल यू। आप अच्छा बोलो, यू विल बी रिजेक्टेड, बुरा बोलो, यू विल बी रिजेक्टेड। अच्छा अगर बोलोगे, देन दैट पर्सन विल नो कि यू 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 आर ए मैनिपुलेटर। बुरा बोलोगे, देन दैट पर्सन विल नो दैट यू आर नॉट ट्रू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आप हर हाल में मार खाओगे, बट आर यू दैट पर्सन? ना आप मैनिपुलेटर हो, ना ही डिसऑनेस्ट हो, आर यू नॉट? राइट। लेकिन लेकिन उस बेचारे का क्या गलती? दे आर ट्रेन टू असेस यू लाइक दैट। कोई आप क्या ऐसे वैसे नहीं करोगे? इफ यू आर गोइंग टू रिक्रूट somebody, how would you assess? करेक्ट। So you cannot blame somebody else. So what is the solution right now? The only solution is to look how to improve your present, जहां पे भी आप हो, how to do that. आप 4 घंटे में कैसे काम खत्म कर सकते हो? फर्स्ट थिंग। Second thing is, whatever work you are doing, if you are doing this for last 2 years, then by this time you should have been proficient over this work. And
and you should have learned new skills also. तो आपने अगर नहीं सीखा, then it is not anybody else's गलती, it is your गलती only. कंपनी का नहीं है ये, वो मेरा गलती है, राइट? Yes, your गलती only. And the other person interview जब देने जाओगे ना, the other person will see that you are not good as a manager. ये मैनेजर कैलिबर का हो ही नहीं सकता जो ओवर टाइम वर्क करता है, राइट? सीधा आप कितना काम करते हो, कितना ऑनेस्ट हो, फिर भी कैन यू सी माई पॉइंट? कैन यू सी माई पॉइंट दोस्तों? नथिंग इज हाईलाइटेड। हैं? सॉरी, कुछ हाईलाइट आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं स्क्रीन शेयर नहीं, ये मेरा जो रिंग लाइट है ना, दैट इज गेटिंग आउट बारी बारी, पता नहीं क्यों। नो नो इश्यूज। नो, आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन कि यही है ना कि आपकी कंपनी की कोई गलती नहीं है, इट इज योर गलती ओनली। हाँ, वो तो वैरी करेगा ना, जो मैं कैसे उसको ये करूंगा अगर हाँ, मैं ज्यादा। so the first thing is you have to have the capability to identify your strength first. The second thing is how to manage your time, how to manage your portfolio in half the time. मतलब 8 hours का जो हमको responsibility मिलती है, that 8 hours actually can be done in 4 hours. अभी आप क्या कर रहे हो, वो 8 hours को 12 hours बना रहे हो, राइट? सो देयर इज अ सेकंड गलती। और मैं नहीं बोलती कि ये इसमें खाली एफिशिएंसी इश्यूज है, इसमें माइंडसेट का इशू भी है, हाउ यू सी थिंग्स, हाउ व्हाट यू कन्विंस योरसेल्फ, व्हाट लॉजिक यू डील विद, ठीक है? वो है। स्किल इशू भी हो सकते हैं बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू दिस वर्क क्विकली, दैट इज व्हाई आल्सो। सो वो भी तीन तीन चीज हो सकता है। देन है होता ना क्या? कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट्स का जो वर्क है वो पूरा टीम मिलके करता है ना, राइट? यस। तो वो प्रोजेक्ट कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स आता है तो उस समय हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ता है। जैसे कि मार्च क्लोजिंग में, जैसे फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मैं फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ, हम्म। तो दिस इज द थिंग दैट उस समय तो वी हैव टू गिव द मैक्सिमम एफर्ट। हम्म। क्वार्टर एंड होने वाला है तो कंपनी विल बी डिमांडिंग फॉर रिजल्ट्स एंड नंबर्स तो हाइक होना चाहिए। हम्म। तो दैट टाइम यू हैव टू डू द सैक्रिफाइस बिकॉज आप पूरे साल सही कर रहे हो बट क्वार्टर एंड में तो कंपनी को रिजल्ट्स चाहिए, तो उस समय आपका या बॉस भी बोलेगा। आप मुझे देख रहे हो, मेरे कितने साल का एक्सपीरियंस है राइट कौस्तुभ? मैम। आप बताओ। 20 प्लस 25। 25+ ईयर्स में आप जो बता रहे हो, क्या आपको लगता है कि मैंने नहीं देखा? देखा या नहीं देखा होगा? बताइए। जो आप सिचुएशन बता रहे हो, मैंने देखा होगा या ऑब्वियसली नहीं? 100%। हाँ, मैंने देखा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जिस कंपनी में काम करती थी ना, उस कंपनी में हमारा जो फाइनेंस डिवीजन था, उसको भी मैंने देखा कि उसमें को करीब करीब 60 लोग थे, ठीक है? 60 लोग में से लगभग लगभग 40 लोग अपने आप को 3 शिफ्ट में डिवाइड किए हुए थे, ठीक है? तो एक शिफ्ट क्या होता था कि ओवरनाइट पूरी रात काम करता था, जो ABC शिफ्ट होता है ना कंपनीज में, मल्टीनेशनल में, दैट वाज काइंड ऑफ अ शिफ्ट। तो हाँ एक हाँ। एक ए शिफ्ट में, फिर एक बी शिफ्ट में, एक सी शिफ्ट में आता था। तो ये मैं 2008 की बात कर रही हूँ। तो मैं उस टाइम में मैं एक पीजी में थी, मेरी कोई फैमिली उस टाइम नहीं थी। तो आई वॉज कमिंग टू ऑफिस एट 8। तो उस टाइम में क्या होता था कि सी शिफ्ट वाले होते थे, जो रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करते थे, वो लोग जा रहे होते थे, तो मैं उनको मिलती थी। देन 8 बजे से शुरू होता था बी शिफ्ट का, जो 8 to 2 PM तक है।
ठीक है, तो उनके साथ काम करती, फिर देन 2 to फिर 10 PM तक जो लोग रहते थे। तो क्या होता था, मैं 8 बजे तक वहां पे रहती थी, क्योंकि वो दूसरा कोई काम तो था नहीं। ऑफिस से जाके पीजी में फिर से जाओगे तो वहां पे क्या करना है, पीजी में वाईफाई था नहीं, तो यहाँ पे वाईफाई मिलता था, कम से कम कुछ तो करो करके। तो उनके साथ ना मैं भी वो इवनिंग स्नैक्स जो है वो खाती थी, राइट। सो आई रिमेम्बर, कितने लोग मैंने बताया, उस टीम में 60 लोग थे, ठीक है। 60 लोगों का 40 लोगों का मैंने देखा। प्रमोशन जब हुआ ना 2 साल बाद, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये फिर या फिर वो 40 का जो इंसेंटिव इंक्रीमेंट हुआ सो हुआ, ठीक है। और जो 20 लोग उस एबीसी लिस्ट में नहीं थे, उनमें से बहुत सारे लोग अभी वाइस प्रेसिडेंट और उस लेवल पे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? Yes, yes, yes. व्हाट आई एम सेइंग आप मुझे बताओगे, आप अपने शब्दों में। those people actually knew how to divide their work, क्योंकि they were responsible, they were they were the, मतलब वो सीनियरिटी की तरफ जा रहे थे, उस टाइम सीनियर नहीं थे, they were just फाइनेंस मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, इस टाइप का थी। those people, अभी 2008 की बात कर रही हूँ, 10 की भी बात कर रही हूँ, 10 से लेके अभी 12 years में दे आर वाइस प्रेसिडेंट, सम अदर इंडसइंड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है एक बंदा, जो तभी असिस्टेंट मैनेजर हुआ करता था, एंड ही वाज नेवर पार्ट ऑफ दैट, यू नो। तो कुछ लोग होते हैं हु आर गुड एट डूइंग देयर वर्क कंप्लीटली। आपको जो पोर्टफोलियो मिला है ना, यू माइट बी फीलिंग कि ये टीम में करना है क्या। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आज आप डिसाइड करो तो कल को ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। बट इट इट टेक्स ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपका माइंडसेट ही होता है। सपोज यू आर द बॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, देन यू नीड टू ऑल्सो गिव देम ट्रेनिंग कि इस काम को कैसे करें ताकि आप ऑन ट्रैक रहें, ठीक है। एक दिन 2 दिन कभी कभी लेट हो सकता है, आप पूरा का पूरा, जैसे मैंने वहां पे देखा था कि दिसंबर हुआ नहीं, जनवरी टू मार्च अप्रैल तक ये एबीसी शिफ्ट चालू है, और उसमें कुछ लोग हैं, 60 लोग हैं, उनको कोई मना नहीं कर रहा है, उनका जो खर्चा पानी हो रहा है, खाने पीने का कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं आ रहा है, दे आर एक्चुअली दे आर एंजॉइंग द टीम, और उस टाइम मजा ही आ रहा है उनको। कुछ लोग तो वहां पे जो रात को है, कुछ लोग सो जाएंगे तो उनका बेडिंग भी है। नोबडी रिफ्यूजेस की, हाँ भाई, कोई मना भी नहीं कर रहा है आपको कि आप नहीं कर रहे हो या फिर कर रहे हो, कि ऐसे क्या कर रहे हो, नोबडी। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, कैन यू बी दी माइनॉरिटी सेगमेंट जो काम को एफिशिएंटली कर ले जाते हैं, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे विल ग्रो। सो बिकॉज यू आर इन फाइनेंस, आपको तो ढूंढना पड़ेगा ना, मैं सिर्फ आपको माइंडसेट दे सकती, राइट। एंड वी कैन डिस्कस ओवर ए पीरियड ऑफ से 6 to 7 क्लास। आप बोलोगे ऐसे नहीं हो सकता है, ये कैसे करूं, वो नहीं हो सकता है, वो कैसे करूं। द टाइम दैट यू आस्क मी कि ये कैसे हो सकता है, यू नो यू हैव ए सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन है, किसी दूसरे, इस दुनिया में किसी दूसरे के पास वो सोल्यूशन है ही नहीं एक्सेप्ट यू। क्वेश्चन जैसे ही आता है, आप उसका आंसर ढूंढो। इफ यू आर वेरी डेफिएंट विथ योर सेल्फ कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कैन आई डू, एंड ना उन लोगों को कैसे मैं, दूसरे भी तो लोग हैं काम कर रहे हैं, ऑल दिस ऑल दिस आर पार्ट of that particular mindset which actually doesn't allow you to grow। आप इसको अगर नहीं मानते हो, कौन मनाएगा आपको, आप बच्चे तो हो नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप अपना इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर्स में 8 घंटे का काम 4 घंटे में होता है। मानती हूँ फाइनेंस का ये जो ईयर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, इसमें ज्यादा काम हो जाते हैं,
फिर भी उसमें से वो जो 20 लोग थे जो अभी सीनियर पोजीशन में हैं, वो कभी भी उस शिफ्ट काम नहीं किए, एंड दे आर इनटू वेरी गुड पोजीशन, राइट? तो आप पहचान अपनी वैसे ही बनाते हो. सो दिस इज द सेकेंड थिंग. पहले में आपको अपना स्ट्रेंथ करना होगा, सेकेंड में आपको डिपेंडेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी आपका एस्टेब्लिश करना होगा. एंड व्हेन यू एस्टेब्लिश दैट, you build influence. When you build influence, then your prominence is established. Agree with this? Agree with this? Agree? Kaustubh, are you there? agree, मैम कुछ issues होगा मैम, so that I cannot continue. Sometime I may not give timely in Okay. response. So Okay. apologize. Okay. So that is the thing. So अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछें. Anything is there? Any questions? If you No want. questions, ma'am. I just want to say nice discussions and nice feedbacks from your end. No, And this is not feedback. Actually, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि what I teach is 3 things. The first thing is to establish your strength, ठीक है? And the second thing is to second thing is to how to uh, establish your credibility and trustworthiness. वो second thing है. And the third thing is, suppose you are not here in this organization और next position में आपको finance नहीं handle करना पड़े, something else you need to handle, then have you thought of that? आपका मार्केट में क्या इमेज है? हाउ डू यू बिल्ड योर कैरियर गोइंग फ्रॉम हियर? तो जब आप फाइनेंस नहीं हैंडल कर रहे होते हो, हु यू आर, तो आपका मार्केट वैल्यू उसी से डिसाइड होता है. सो दैट इज द थर्ड थिंग. एंड यस, एंड इसका एक प्रोसेस है मेरे पास, जिसमें ये जितने भी सारे मैं बोल रही हूँ उसमें एक चीज, एक टाइम मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ भी कि क्या है. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? yes, I can. हाँ. सो 3 आइडियाज टू इंटरनलाइज इसमें. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स नीड्स टू बी नोन. तो आपका यूएसपी जो सेलिंग पॉइंट है, हैव यू पैकेज्ड इट वेल? एंड द सेकेंड थिंग इज योर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी टू बी मॉनिटर्ड, जिसमें वो भी है, लाइक 8 आवर्स का काम कैसे आप 4 आवर्स में करो, और दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर एक्सपर्टाइज. अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, सो देर इज सम इशू इन योर एक्सपर्टाइज. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस विल बी सीन बाय द अदर पर्सन हु विल बी इंटरव्यूइंग यू. लगातार आप बोलोगे कि ओवर टाइम हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है, देन दे विल पक्के से जानेंगे कि भाई ये फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है. फाइनेंस मिनिस्टर अगर इतना काम नहीं करती है, तो ये इनको क्या काम करने इतना पड़ जा रहा है. सो एक्सपर्टाइज इशू, मजाक में मैं बोल रही हूँ. सो इट इज लाइक दैट. ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हैज टू बी मॉनिटर्ड एंड ट्रेन पीपल टू रिप्लेस यू. आपने ये कभी, मुझे नहीं लगता कि आपने किया हुआ, क्योंकि आप जब किसी को अपना काम, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाते हो क्योंकि आपने ट्रेन नहीं किया हुआ. ट्रेन इसलिए नहीं किया हुआ, शायद आपकी कंपनी ये नहीं सोचती कि आप किसी जूनियर को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा है किसी पे. तो व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? लीडर में क्या होता है? लीडर में ये सारे इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. मतलब ट्रस्ट वो करना जानता है, एम्पावर करना जानता है लोगों. ठीक है, एम्पैथेटिक है, लोगों को क्या आता है और क्या कहाँ पे उसको सप्लीमेंट करना चाहिए, ये उसको पता है. ठीक है. देन 6 थिंग्स यू नीड टू डू.
फर्स्ट तो प्रॉब्लम एनालिसिस करो, आपका प्रेजेंटेशन स्किल देखो कि आपका कितना है। प्रेजेंटेशन स्किल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हम लिखते हैं ये करते हैं। मैं चैलेंज देके कर बोल सकती हूँ कि आप खुद को प्रेजेंट नहीं करते, आप ऑडियंस डिसाइड नहीं कर पाते, और दूसरे ऑडियंस को दूसरा टाइप का प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, ये आपको पता ही नहीं होगा। देन आप टाइम, बजट एंड एचआर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आप सेकंड लाइन लीडर बना ही नहीं, जो आपका आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटे। एंड ए लीडर, यू शुड नो कि 80% टाइम वो प्लानिंग करता है, हाउ टू बी एफिशिएंट। मुझे पता नहीं आप कितने टाइम लगाते हो पूरा का पूरा टाइम अगर आप पूरे साल का ले लोगे तो 80% टाइम गोज इन प्लानिंग। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सो आई वाज सेंट टू कनाडा सम टाइम बैक फॉर ए स्टडी टूर। तो उस टाइम में क्या हुआ, आई वाज हैंडलिंग 500 हाउस होल्ड, यहाँ पे भी मैं काम करती थी। तो देन स्क्रीन पे थोड़ा सा आती हूँ। तो देन 500 में भी मुझे लगता था और उनका लाइवलीहुड स्टेटस जो है उसको एनहांस करना था। आई वाज थिंकिंग कि बाप रे कितना बड़ा काम। एंड व्हेन आई वाज सेंट टू दैट टूर, कनाडा में एक बहुत यूनिवर्सिटी है कोडी इंस्टीट्यूट, आपने सुना होगा। तो in that one faculty came from Kenya and he was working in Bangladesh and he was working with 35,000 households और उनको भी 4 साल मिला हुआ था। मेरे भी प्रोजेक्ट का टाइम 4 साल और था और उनके भी प्रोजेक्ट का टाइम 4 साल ही था। Then I asked him, how could you do this? So उन्होंने वापसी से मुझे क्वेश्चन पूछा, think how could have I done this? आपको क्या लगता है कि हाउ कुड आई डू, हाउ कुड हैव आई डन दिस? देन आई सेड कि दिस इज अ ह्यूज ह्यूज वर्क, कैसे कर सकते हो आप? तो देन ही सेड कि ट्राई 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 थिंकिंग, बिकॉज most of the leaders, when they are given a problem, they actually don't think, outline or plan their work well. तो फिर मैंने बोला कि अच्छा 4 साल में आपको 35,000 हाउस होल्ड करने थे, तो देन डिवाइडेड बाई 4, तो 9,000 समथिंग, 10,000 पकड़ो, 10,000 हाउस होल्ड इन 1 ईयर। मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि अच्छा, द मोमेंट यू गो टू द फील्ड यू स्टार्ट वर्किंग विद 10,000 पीपल, इज दिस सो? हाँ, मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता है, 6 7 8 महीने तो लोगों को रिक्रूट करने में लग जाएगा, कौन सा घर है उसको आइडेंटिफाई करने में लग जाएगा। तो he said yes, that planning needs to be incorporated into your work plan whatever you are doing. तो उसमें 8 मंथ दे, कितना टाइम दोगे, यू गिव द टाइम, उसने बोला। तो आई सेड कि जो भी हिसाब किताब मैंने लगाया, बोला कि अच्छा 8 मंथ तो लगे ही होंगे। देन ही सेड कि अच्छा 8 मंथ लगे तो फिर नाउ हाउ कुड हाउ 35,000 हाउस होल्ड वेर कवर्ड, टेल मी। तो देन मैंने बोले अच्छा, तो फिर 8 मंथ निकाल दो 4 साल से, तो बच गए कितने, 3 साल का 36 महीने हो गए, एंड देन अनदर 4 मंथ, सो 40, पर मंथ 3,000 पड़ा, तो पर ईयर इट नाउ गोज टू से इतने। तो उसने बोला कि लास्ट 6 मंथ्स आप जब मतलब रैप अप करते होंगे, उस टाइम में यू आर नॉट गोइंग टू टच न्यू हाउस होल्ड, राइट? सो लास्ट का 6 महीना छोड़ो, फिर से छोड़ दिया। सो नाउ ये प्रोसेस था कि कब क्या करोगे, व्हेन टू रिक्रूट, व्हेन व्हाट। तो जब तक ये प्लानिंग पूरा नहीं हो गया, ही डिडंट स्टार्ट द वर्क। हमको जैसे काम मिलता है ना, वी गेट ओवरवेल्म सो मच कि इमीडिएटली बिना सोचे समझे वी स्टार्ट वर्किंग, राइट? सो ही वाज सेइंग कि ऐसा नहीं होता। You leaders have to spend their time, 80% of their time in planning. So let me come back to that screen. So obviously we don't know how to use our time, budget and HR. Of course we don't know. Then creating second line leaders.
जिस लीडर को आपका जो काम होता है, समटाइम यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, समटाइम्स यू हैव टू डेलीगेट, समटाइम्स यू हैव टू डिलीट, समटाइम्स यू हैव टू डेफर। ये आपने सुना है तो स्टीवन कोवे का? हैव यू हर्ड ऑफ दिस 4 रूल? यस, नो? कुछ तो बोलिए, कुछ तो। सो so for this your second line has to be ready. ये हो गया। Then overcoming ambiguity, आपका बॉस कुछ बोला, अब जब आप प्लान करोगे, टीम बनाओगे, then what happens is, just give me a minute. So just what happens is, your team, there are so many people, कभी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। Suppose your boss says यूजिंग something। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे? मैं चैट यूज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके। Let me go to the chat. Yes, okay. So कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। Your seniors will say something, your boss will say something, your boss's boss will say something। और उसके ऊपर भी कोई बॉस है जिसका एक्सेस है आपके पास, वो मतलब एक ही ऑफिस में बैठते हो तो वो भी कुछ बोलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट ये तीनों के बात एक लाइन में नहीं होते। नाउ आप किसकी बात सुनोगे? ऐसे कभी गलती से भी मत सोच लेना कि इट इज द सुपरेस्ट, जो सीनियर मोस्ट बॉस होगा उसकी बात सुननी है। नो। क्यों? क्योंकि द मोर हायर अप वन पर्सन इज, उसको उतना कम इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल का पता है जहां पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो बट हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू हैंडल दिस बॉसेस? इतने सारे बॉस हैं, एंड योर टीम ऑल्सो। कोई भी कुछ बोल सकता है क्योंकि इनका इनका बैकग्राउंड ही डिफरेंट है। नो नो अदर पर्सन कैन बी लाइक यू। आप जिस बैकग्राउंड से आए हो सकता है कि वहां बहुत सारा सब अच्छा अच्छा होता था। somebody would have come from a background where there were frequent failures. Another would have come where he has encountered risk। मना नहीं कर सकते हो ना। how can you handle that, how can you control that? उससे जूझ के वो लोग यहाँ तक आए हैं। you have to appreciate their background। हम सभी कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आए। मैंने जो किताब पढ़े हैं वो किताब आपने नहीं पढ़े हैं, आपने जो पढ़े हैं वो मैंने नहीं पढ़े। सो हाउ कैन वी बी डिफरेंट? मेरे जो पेरेंट्स थे वो आपके पेरेंट्स नहीं थे। सो योर पेरेंट्स आर डिफरेंट, माई पेरेंट्स आर डिफरेंट। मेरे जो लोग बाग, जिन लोगों से मैं मिली हूँ, दे वर डिफरेंट, योर्स वर डिफरेंट। सो वी कैनॉट बी सिमिलर पीपल। सेम विथ योर कलीग, सेम विथ योर बॉस, उसका बॉस, उसका बॉस। So all of them will be very different. So you now have to accommodate. So that is the one quality of a leader, empathy। आपको अप्रिशिएट करना होगा कि वो जो बोल रहा है उसमें कुछ तो वैल्यू है। हमेशा ही फालतू का बात वो नहीं करता है। अब उसको रिस्क से आया हुआ है तो डर काफी ज्यादा लगता है। कैसे आप मना करोगे? उसका लाइफ एक्सपीरियंस ही ऐसा है। मैं एक किताब पढ़ रही थी, प्राइस ऑफ मनी। आप पढ़ना कभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब। वॉरेन बफेट के बारे में बात वहां पे हुई है, एंड somebody else। वो जो somebody else था, he was from a rich background। वॉरेन बफेट जो थे, he was from ordinary background। हम आप जैसे हैं ऐसे ही बैकग्राउंड से आए। आज वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में वॉरेन बफेट गिने जाते हैं, ना कि दैट पर्सन। हाउ वाज दैट? वो इसलिए कि उन्होंने कुछ किया। सडनली नहीं हुआ। उनका ग्राफ अगर देखोगे आप कि उनके पास पैसे कैसे बढ़े, तो फर्स्ट 30 years उनका उनका ग्राफ एकदम सपाट सा है, फ्लैट। जैसे आप सेविंग करते हो आज 100, तो कल 6 पॉइंट इंटरेस्ट रेट से वो कुछ बढ़ेगा, फिर कुछ बढ़ेगा, ऐसे। बट
समटाइम्स इट गेट्स इनटू कंपाउंडिंग लेवल। वो कंपाउंडिंग लेवल देने के लिए आपको टाइम का इस्तेमाल, टाइम फैक्टर का इस्तेमाल करना होगा, राइट? नाउ व्हाई आई केम टू दिस इज पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, इनके पास उतना ही अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बट दे सी अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट वे। परसिस्टेंस लेवल भी आपका डिफरेंट होता है। वो वारेन बफेट में भी वो रिसेशन विसेशन देखे होंगे, उन्होंने भी देखा। सेम टाइम में अगर होंगे तो जितने रिसेशन आपने देखे उतने मैंने, राइट? तो लेकिन हमने कैसे उसको इंटरप्रेट किया, दैट विल बी वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन विच बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम। तो उससे क्या होता है, पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाता है। इट डजंट मीन कि द अदर पर्सन इज एब्सोल्यूट रबिश। तो अब अगर आप सबकी ओपिनियन लेते रहोगे तो आप काम कैसे करोगे, ये भी एक सवाल हो सकता है। नाउ हाउ डू यू डू दैट? हाउ कैन यू लिवरेज अदर पीपल्स कैपेबिलिटी? एक सिंपल सी बात करके, आप आज अगर सोच रहे हो ना कि द अदर पर्सन हैज कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड, इसलिए थोड़ा सा उसको सेंसिटिविटी और मेरी केयर की और मेरे कंसिडरेशन की जरूरत है, इतना ही सोच लिए ना, ही और शी विल बिकम ए फ्रेंड टू यू। आज उसने कुछ बोला, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, पूरे दुश्मनी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सबको पता है कि इन दोनों में दोस्ती हो ही नहीं सकती, झगड़ा होते रहता है। बट द मोमेंट यू थिंक, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट थिंक कि ही हैज कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड, कल से वो आपका दोस्त बन जाएगा। लगी शर्त? एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक? अब इसमें फायदा ये है, एंड यू बिकम ए लीडर बाय दैट। दोस्तों, आपने कुछ एक्स्ट्रा एकेडमिक्स नहीं लिए, आपने सिर्फ आज 15 मिनट मुझे सुना है, एंड व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज डू सम एक्सपेरिमेंट्स विथ व्हाट एवर आई एम सेइंग। इतना ही करके देख लेना, you will see a stark difference. you will you will grow as a manager. मैनेजर तो मतलब वो तो आप चाह रहे हो कि आपका प्रमोशन हो, बट यू विल बी ए लीडर। लीडर का कोई ऑथोरिटी पावर ये नहीं होता, लेकिन आपने सुना होगा कोई आपके गांव में अनपढ़ से चाचा थे या फिर चाची थी, उसको आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे कभी आपके लाइफ में हुआ है? या फिर कोई है जिसके ज्ञान से, जिनके मतलब ये उतने सुलझे हुए हैं कि आप उनकी एडवाइस हमेशा ही लेते हैं? तो हम क्यों लेते हैं उनकी एडवाइस? बिकॉज दे हैव लाइफ विजडम, राइट? सो दैट लाइफ विजडम इंक्रीजेस, एंड दैट लाइफ विजडम इज व्हाट एस्टेब्लिशेस ए लीडर। आपके पोजीशन से आप कल अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपको कोई मैनेजर नहीं बोलेगा। ये तो चलता ही रहेगा, आप तो लीडरशिप ग्रोथ में हो। Anyways, we can stop here. You can come to another session of mine, so I can let you go. Thank you for listening. We can continue in another session. And by the way, if you are, yeah, thank you so much. And by the way, if you are coming to a systematic session of mine, that also you need to do. Saturday, कल शाम को 7 बजे. Are you free? Are you free tomorrow at 7:30? नहीं नहीं, आई एम आस्किंग समथिंग। कल 7:30 को आप फ्री हो क्या? Okay. Anyways, so whenever you are free, this is an ongoing discussion wherein you need some systematic training. So for that you need to come to that, ना टाइम निकाल के आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ विल कंटिन्यू लाइक दिस, और उससे कुछ नहीं होता, राइट? सो यू डिसाइड सम टाइम, एंड उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालना भी एक स्किल की बात है। आई विल सी कि कब आप इसके लिए रेडी होते हैं, राइट? So thank you for being here in this session. Thank you so much. We will be talking sometime. Thank you so much.